OBC and Minority Confederation of India and the right activist. Sir, please come on the stage and share your views on Dr. B.R. Ambedkar and the Christian Dalit literature. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Jai Hind. Jai Hind. Jai Bharat. Jai Bharat. As my sister told that I am working on the unity of Dalit minority. Hello. 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 Are you listening? Yes, sir. Good morning. Good morning. Jai Bhim, Jai Bharat. Jai Hind. Jai Bharat. My sister introduced me that I am working on the unity of or the rights of Dalit OBC minority. I am associated with national and international forum. Before attending the program of National Dalit Christian, I am associated with the National Dalit Council. Dr. Sam is their head. Many times I am invited in Hyderabad and also in the United Kingdom. For the last 27 years, I am working on this topic to create unity amongst our brothers, sisters who are protected by the Indian Constitution, who loves the Indian Constitution which has been framed by Baba Sahib Bhimrao Ambedkar Bharat Ratna. And now he is not only remembered as Bharat Ratna but also the student of the world. Dr. Ambedkar got the award Student of the World. So today I am very happy to be a part of National Dalit Christian Watch Orientation and Empowerment Program Know Your Rights. Today on 18th June 2024, and also thank the organizers for giving me the time to speak on creating unity and Dr. Ambedkar and Dalit Christian liberation. First of all, I will speak on unity, how we can create unity, why unity is needed, not at the time of 47, but now is very, very important for us who are Dalit, OBC and minorities in India. You are seeing, reading, listening, what is happening. Even the people of the country has saying Christian and Muslim has no poised place in India. They should to think what they have to do. And very, very miserable condition of scheduled caste who has not converted, still in Hindu. Situation of India now is very bad, worsened, and the intellectual amongst us, like this
National Dalit Christians and other organizations who are working. We appreciate, we welcome them for organizing this type of program and awaiting the masses who don't know what will happen tomorrow if they will slept. अगर वो सोए ही रहे तो क्या हालात होंगे उनको देख लेना चाहिए। अभी थोड़े दिन पहले सिखों पर हमले हो रहे हैं, मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं, क्रिश्चियनों के गिरजों को जलाया जा रहा है। आया माई ऑर्गेनाइजेशन whenever these type happening we raise the voice। हट के बात करूंगा। 27 ईयर से मैं देख रहा हूँ, पहचान रहा हूँ, लोगों को मिल रहा हूँ। कौन लोग हैं जिनके साथ मैं काम करूं? मुझे लोग नहीं मिल रहे। 4 साल पहले मैं खुद जाता हूं लोगों को मिलने के लिए, आइए चलिए मैं आपके साथ चलूंगा। कुछ सोचते हैं आने वाले दिनों में क्या किया जाएगा। मैंने एक इंटरव्यू देखा पेपर में, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर से एक नौजवान अपने मायशरे को लेकर, अपनी सोसाइटी को लेकर मिलने गया। मैंने बड़े गौर से देखा, मैं उसके पीछे लग गया कि मैं इसको मिलूंगा, क्योंकि मुझे ऐसे नौजवान की ज़रूरत है जो अपनी सोसाइटी की अपलिफ्टमेंट के लिए, उसकी वेलफेयर के लिए गवर्नर तक मिल रहा है, अपनी डिमांड्स प्रोजेक्ट कर रहा है। मैं उसको मिला और तब से मैं उसके साथ हूँ। वो आशुपुत्र मट्टू, इससे पहले बहुत से ऐसे क्रिश्चियन नेताओं से मैं मिलता रहा हूँ और कास्ट के नेताओं से मिलता रहा हूँ। मुझे ऐसी सपोर्ट नहीं मिली जैसे आशुपुत्र मट्टू से मिली। और हम भी पीछे नहीं रहे हैं, किसी भी कारण में हम पीछे नहीं रहे हैं कि इस आशुपुत्र मट्टू की संस्था को आगे बढ़ाने में पूरी की पूरी मदद करते रहे। तो आज का टॉपिक है कि हाउ वी कैन क्रिएट यूनिटी। ये हमने छोटे 3rd 4th स्टैंडर्ड में और हायर एजुकेशन में भी पढ़ा है। आज हम फिर उसको दोहराते हैं। मुझे आशा है आप सबको मालूम होगा, लेकिन ऐसे मौक़ों पर, इन सिचुएशंस में हमें ऐसी बातों को याद करना पड़ेगा। A farmer who has 3 sons, very good farmer, landlord, a rich farmer, he has 3 sons. He saw his sons are quarreling themselves, but he respected their father. He thought, what to do after me? क्या होगा इनका? He called them, come and bring sticks for me. They bring sticks. He told to his one son, bundle them, knot them. Then he gave bundle to one son, break him. To second, then third, no one break that. Then he told, open this bundle, and gave one stick to everyone and told them to break them. Every stick has been broken. He educated them. What happened? When this bundle is united, no one can break it. And when this is in single piece, you have broken all them. So my dear sons, be united. No one break you. You will progress. People will remember your family. How united this family. I am telling you, be united. People will remember you when you put your demands in front of anyone. When they know you are powerful, they will
fulfilled your demand. So we should to become a united house. इसके लिए और भी आपको सपोर्ट मिलेगा इस यूनिटनेस में। ये तो मैं एक फैमिली की बात कर रहा हूँ, एक कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ। जब जम्मू कश्मीर की बात आएगी, जब भारत की बात आएगी, तो हम सब लोगों को यूनाइट होना पड़ेगा, सब लोगों को अपने अधिकार की बात करनी पड़ेगी। और हम बात करते हैं अंडर द प्रिव्यू ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और भी ये कहानी लंबी है कि इसको कैसे बढ़ाया जाए, लेकिन मैं यहाँ ही सीमित रखता हूँ कि हमें यूनियननेस चाहिए, हमें यूनिटी क्रिएट करनी है, हमें अपने साथ और लोगों को जोड़ना है। जैसे आज ये जो दलित क्रिश्चियन फोरम है जो बाहर से आके यहाँ कर रहा है, आज हम फिर फर्दर हम यहाँ से शुरू करेंगे, फिर गांव-गांव पहुँचेंगे, फिर ताकत बढ़ेगी। अब मैं दूसरे टॉपिक पर आता हूँ, जो दूसरा टॉपिक है डॉक्टर अंबेडकर एंड लिबरेशन ऑफ दलित क्रिश्चियन। बाबा साहब के लेखन में जो मुख्य बात लोग भूल जाते हैं वह ये है कि वह एक कट्टरपंथी राष्ट्रवादी थे और वास्तव में भारत को एक प्राचीन इकाई के रूप में मानते थे। दूसरी ओर वास्तविक ईसाई और मुसलमान जिन्होंने उनके काम को पढ़ा है, वह हिंदू धर्म के बारे में उनकी कही गई हर बात पर आंख मूंद कर विश्वास करते हैं, लेकिन सोचते हैं कि जब उनके धर्म की बात आती है तो वह गलत या पक्षपाती है, क्योंकि ऐसे वो रेफरेंस कोट करते हैं कि उनके लिए कुछ नहीं रखा गया। हिंदू धर्म के लिए whatever बाबा साहब कोटेड फॉर हिंदुइज्म, मुस्लिम एंड क्रिश्चियन फुली ट्रस्टेड, बट अपने लिए वो कभी कभी क्वेश्चन क्रिएट करते हैं कि हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे, हम ऐसे ही रहेंगे। डॉक्टर अंबेडकर देश के इतिहास से नफरत नहीं करते थे, वह अपने युग में प्रचलित अंधविश्वासी संस्कृत और जाति के गौर असमानता की नफरत करते थे। उन्होंने अपनी पुस्तक हिंदू धर्म की पहेलियां में यहाँ तक उल्लेख किया है कि जबकि पश्चिम का मानना हो सकता है कि लोकतंत्र उनका आविष्कार था, लोकतंत्र बाबा साहब कहते हैं जो वेस्टर्न कंट्री हैं जो उनका ओरिजिनेट किया हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ बाबा साहब ये भी कहते हैं हिंदू वेदांत में इसके बारे में और भी प्रमुख स्पष्ट चर्चाएं हैं जो पश्चिम की किसी भी अवधारणा से पुरानी है। जब इनके कुरान पे पढ़ते हैं तो ऐसे पढ़ा जाता है कि बहुत साल पुराने हैं और उनमें कुछ कास्ट सिस्टम का वर्णन भी ज़्यादा नहीं हुआ है। लेकिन उन्होंने सिर्फ हिंदू धर्म की प्रशंसा नहीं की, उन्होंने आगे कहा कि सैद्धांतिक रूप से यह उत्कृष्ट था, फिर भी पुजारी समाज में समानता लाने के लिए इसे और विकसित करने में विफल हो गए। उन्होंने हिंदुओं के लिए कहा है कि ये जो हिंदुओं के पुजारी होते हैं, प्रीस्ट ऑफ हिंदूज, उन्होंने कास्ट सिस्टम को कम करने में या अपने ग्रंथों को स्पष्ट रूप में बताने में बेईमानी की है। कास्ट सिस्टम पर उन्होंने प्रहार किया है, उसको आगे बढ़ाया है। आइए दलित मुक्ति से संबंधित उनके विचारों और कार्यों पर गहराई से विचार करें। मुक्ति के रूप में धर्मांतरण, कन्वर्शन, बाबा साहब कह रहे हैं 1936 में बम्बे प्रेसिडेंसी में महासम्मेलन के दौरान अंबेडकर का दृढ़ विश्वास था कि दलितों को मुक्त करने का एकमात्र तरीका धर्मांतरण है।
Clearly he told only self-respect for Dalits is conversion. उन्होंने माना कि जाति व्यवस्था हिंदू धर्म में गहराई से समाई हुई है और जब तक दलित हिंदू बने रहेंगे वह भोजन, पानी और सामाजिक स्वीकृति जैसी बुनियादी आवश्यकताओं के लिए संघर्ष करते रहेंगे। और ऐसा है, आज भी हो रहा है। अंबेडकर के आंदोलन का उद्देश्य मनुस्मृति को जलाकर जाति दास्तान के सांस्कृतिक कानूनी प्रतीक को चुनौती देना था, जो एक प्राचीन ब्राह्मणवादी संहिता थी जो जाति आधारित भेदभाव को कायम रखती थी। वर्ण व्यवस्था, क्लासिफिकेशन ऑफ कास्ट, all defined in Manusmriti, a law book of Hinduism. Baba Sahib warned that. Why? We don't want classification. This is Brahman, this is Baniya, this is Rajput, and this is Shudra. राष्ट्रवाद का दलित परिप्रेक्ष्य, डॉक्टर ने राष्ट्रवाद के दलित परिप्रेक्ष्य का निर्माण करने के लिए व्यापक रूप से लिखा है। उन्होंने दलितों को मुक्त करने के लिए हिंदू विरोधी और गांधी विरोधी दृष्टिकोण की वकालत की। सहानुभूति पर निर्भर रहने की बजाय अंबेडकर ने दलितों से संगठित होने, खुद को शिक्षित करने और आत्मसम्मान के लिए लड़ने को कहा है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये डॉक्टर अंबेडकर के कोट किए हुए उनकी किताबों से मैं ये ब्रीफ लाया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अथक प्रयासों से दलित मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया, दमनकारी प्रणालियों को चुनौती दी और सामाजिक न्याय की वकालत की। उनकी विरासत भारत और उनके बाहर समानता और मानव अधिकारों के लिए आंदोलन को प्रेरित करती है। We are seeing today in the world, people are demonstrating, raising voice for their rights. This all is happening due to the struggle of Baba Sahib Bhimrao Ambedkar. He has quoted, he has written, he has shown the ways to the world, not only to the India, but to the world, and people are demonstrating for their voice outside also. अमेरिका में कानून की डिग्री प्राप्त करने के बाद अंबेडकर भारत लौट आए। 1920 में नागपुर में पहले दलित वर्ग सम्मेलन में राष्ट्रवादी प्रवक्ताओं पर हमला किया। After getting this education, law degree in 1920, he organized his convention in Nagpur and he attacked on these type of people who are maintaining status quo of caste system and keeping everything in their hands. जब तक साइमन कमीशन भारत आता तब तक वह अंबेडकर स्पष्ट रूप से देश में सबसे मुखर दलित नेता के रूप में उभर चुके थे, जिनका एक महत्वपूर्ण जनाधार था। People are quoting, even media is seen quoting that someone died after objecting Simon Commission in Lahore. I don't want to quote his name, but they don't wrote why Simon Commission came in India. Simon Commission came on the request of Dr. B.R. Ambedkar. For whom? For us, for Dalit, for OBC, for minority of India. उन दलितों की मुक्ति के लिए आर्थिक और सामाजिक
उपायों की आवश्यकता पर जोर दिया। अंबेडकर ने राष्ट्रवाद के दलित परिप्रेक्ष्य का निर्माण करने और दलितों की मुक्ति के लिए हिंदू विरोधी और गांधी विरोधी दृष्टिकोण बनाने के लिए व्यापक रूप से लिखा। दलितों की मुक्ति के बारे में उनका दृष्टिकोण और दर्शन अलग था। उनका मानना था कि जिस समतावादी सामाजिक व्यवस्था के लिए वे प्रयास कर रहे हैं वह हिंदू धर्म के भीतर संभव नहीं है, जिसकी नींव ही सीरियल वाइज है, अप टू डाउन, और अनुसूचित जाति सबसे नीचे है। चतुर्वर्ग व्यवस्था जिसका गांधी ने विरोध नहीं किया था, हिंदू धर्म का हिस्सा थी। जाति और वर्ण के पीछे की धार्मिक पवित्रता को नष्ट किया जाना चाहिए। जाति और वर्ग के पीछे की धार्मिक पवित्रता को नष्ट किया जाना चाहिए और शास्त्रों के दैवीय अधिकार को त्याग कर ऐसा करना संभव है। जाहिर है अंबेडकर को अशुद्धों के प्रति स्वर्ण हिंदुओं की परोपकारी भावना पर भरोसा नहीं था। जो आजकल आप देखते हो 84 करोड़ देवी देवता हैं इस देश के अंदर, हम कहाँ स्टैंड करते हैं? उन्होंने जोर देकर कहा कि अनुसूचित जातियों को सहानुभूति पर निर्भर रहने की बजाय संगठित होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए और आत्म सम्मान के लिए संघर्ष करना चाहिए। जाति के विनाश के साथ साथ उन्होंने दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग भी उठाई। बाबा साहब के ईसाई धर्म पर विचार बहुत ज्यादा ज्ञात नहीं है, क्योंकि इस पर ना तो चर्चा की जाती है और ना ही इसे व्यापक रूप से प्रकाशित किया जाता है। जो भी संस्थान उपलब्ध हैं उनसे उन्होंने इसे राजनीतिक धर्म नहीं माना। मैं फिर दोहराता हूं, बाबा साहब के ईसाई धर्म पर विचार बहुत ज़्यादा ज्ञात नहीं है, क्योंकि इस पर ना तो चर्चा की जाती है और ना ही इसे व्यापक रूप से प्रकाशित किया जाता है। जो भी संस्थान उपलब्ध हैं उनसे उन्होंने इसे राजनीतिक धर्म नहीं माना है। उनके अनुसार ईसाई धर्म और इस्लाम में धर्म निरपेक्षता और भाईचारे की भावना का अभाव था, क्योंकि वह गैर अब्राहमिक अनुयायियों को अपना साथी नहीं मानते थे और ना ही वह गैर अब्राहमिक साथियों द्वारा शासित राष्ट्र को अपना मानते थे। ईसाई धर्म के लिए उन्होंने देखा कि हालांकि वह समानता का उपदेश देते थे, लेकिन राजनीतिक माहौल में ये निरर्थक था। वह अपने रुख पर स्पष्ट थे कि एक धर्म के रूप में ईसाई धर्म किसी भी सामाजिक आंदोलन को प्रभावित करने के लिए अप्रासंगिक था। मिशनरी समानता के नाम पर धर्मांतरण के बारे में सोचते हैं और फिर ये सोचकर चले जाते हैं कि उन्होंने एक व्यक्ति को नरक से बचा लिया। पॉलिटिकल एस्पायरेशन जो है, बाबा साहब कहते हैं, ना तो क्रिश्चियनों में है और ना ही मुसलमानों में है। धार्मिक जो ऑब्लिगेशंस है उस पर वो कायम रहते हैं और उन्हीं के धर्म के साथ जो लगते हैं उससे वो संबंध भी रखते हैं, अदरवाइज वो कटे से रहते हैं। राष्ट्र के बारे में भी उन्होंने कहा है कि राष्ट्र भी वो मानते हैं जो आजकल मैं पहले कोट किया। इस तरह की सोच बाबा साहब उनके बारे में बताते हैं।
मदर इंडिया के प्रकाशन ने इन बुराइयों को सबसे व्यापक प्रचार दिया। उन्होंने सेवा का काम, जिससे उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, आज भी देखने को मिलता है। होना तो उल्ट था कि देश और जम्मू कश्मीर में ईसाई एनजीओ ने एजुकेशन फैलाने में एक बड़ा काम किया, लेकिन इनमें ईसाई लोग आज भी पिछड़े दिखते हैं। क्यों दिखते हैं? पूरे देश को पढ़ा दिया क्रिश्चियन मिशनरी ने, जम्मू कश्मीर में पढ़ा दिया क्रिश्चियन मिशनरी ने, और जो दलित क्रिश्चियन है वो कहाँ रह गए? वेयर दे लेफ्ट? व्हाट आर देयर पोजीशन? व्हाट आर देयर पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट? Because they are lack of knowledge. No NGO has come forward for them. मैं कभी कभी ये कहता हूं, जिनको इन्होंने पढ़ाया वो इनके खिलाफ रैली और प्रदर्शन कर रहे हैं, और जिनको इन्होंने पढ़ाना चाहिए था उनसे ये दूर रहते रहे। We have to think for this, how we bring a change. टाइम है हमारे पास अभी। यदि आप भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार तथा संवैधानिक उपचार का अधिकार पर चर्चा करते हैं, तो आपको वह सभी अधिकार नजर आएंगे जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बड़े सोच समझकर बनाए थे। अब हम कहें कि क्रिश्चियों के लिए क्या किया क्रिश्चियों के लिए? दे आर नॉट बॉर्न अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। I am asking you fundamental तथा संवैधानिक उपचार का अधिकार पर चर्चा करते हैं, तो आपको ये सभी अधिकार नजर आएंगे जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बड़े सोच समझकर बनाए थे। क्योंकि उस समय मौलिक सदस्यों जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के मेंबर थे, इन अधिकारों का विरोध किया था तथा वह मनुस्मृति का सिद्धांत लागू करना चाहते थे। और यदि आज इस कार्यक्रम में हमें ये कहना पड़े कि ये सभी अधिकार अन्य भारतीयों के साथ साथ दलित ईसाइयों की मुक्ति के लिए क्या नहीं है? मान लीजिए टुडे एज पीपल आर टॉकिंग, वी आर लिसनिंग, वी आर सीइंग कि भारतीय संविधान को बदल दिया जाए। इतने हमें वोट चाहिए, इतने हमें मेंबर चाहिए, हम संविधान बदल देंगे। ये कोई लुकी छुपी बात नहीं है, ओपन बात है। चलो वो ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन अगर संविधान बदल दिया जाए और रिलीजन राइट्स खत्म कर दिए जाए, कैन वी प्रे? कैन शूद्रा गोज टू द टेम्पल? Can Christian goes to the girja? Can Sikh goes to the Gurdwara? Can Muslim goes to the masjid? Leave that. अगर एजुकेशनल राइट्स खत्म कर दिए जाएं जो इस देश में पहले थे, नॉट एजुकेशन फॉर ओनली फॉर फ्यू कम्युनिटीज। अगर आज जो चाहते थे इस संविधान को मनुस्मृति जैसा लिखना, और आज
एजुकेशन राइट्स खत्म कर दिए जाए, क्या बनेगा हमारा? हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स हैं, वो क्या एक वर्ग के हैं? क्या दलित क्रिश्चियंस के नहीं? मैं तो यहाँ तक भी कहूँगा कि क्रिश्चियनों में भी दलित कहलाने में भी शर्म महसूस करते हैं। मैंने इन कानों से, इन आंखों से सुना है, देखा। आई एम विद आशु पीटर मट्टू। I am associated with National Dalit Council. I am raising this issue of reservation to Dalit Christians from 97. Every time we have the parliament, many times I have the assembly, Jammu Kashmir Assembly, I projected this demand to give a reservation to Dalit Christian, work for their upliftment. Always I am meeting with Governor, LG, the ministers, then open special schools. Government should open special schools, high, beautiful standard school for Safai Karmachari, pupils, children. Free coaching. Friends, this is the time. We should to unite. We should to think. We should to remember. We should to follow Baba Saheb Bhimrao Ambedkar. और अगर आज भी बाबा साहब अम्बेडकर जी की भूमिका को एक दूसरे के साथ वार्तालाप में लाते हैं और उनके बताए हुए रास्ते, शिक्षित बनो, संगठित बनो और आंदोलन बनो पर चलते हैं, तो यकीनन हम लोग अपने फंडामेंटल अधिकारों के बचाने में कामयाब होंगे। और यही आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है। अंत में मैं नेशनल दलित क्रिश्चियन फोरम का बहुत बहुत शुक्रिया, आशु पीटर मट्टू जी की जम्मू कश्मीर क्रिश्चियन सभा का, कि आप लोगों ने मुझे एक मौका दिया। मैंने अपने दिल के विचार जो हैं आपके साथ साझा किए और मेरी पूरी की पूरी सपोर्ट जो है आपके साथ है। जय भीम, जय भारत। थैंक यू।